हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। कल तो हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, तो रिव्यू कुछ नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट जाएंगे कल के व्यू में। तो कल ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, बैंक निफ्टी से हम चालू करेंगे। ओके, so the bank nifty may, if we look the volumes are pretty supportive. It is not like that bank nifty has gone without the volumes. So the buying volumes are very heavy. And looking at the market structure, if you look at, first of all, bank nifty was trying to come back to this channel, but it is struggling. It is struggling from here. Okay, from 5th January it is struggling around this channel. It's trying to come back, but it is not able to come back. So how many days we need to wait for a comeback into the channel ideally? So ideally 1 week kind of stuff, which is already done. So that means if bank nifty does not sustain between this channel tomorrow, inside this channel tomorrow, it would be very difficult for bank nifty to go up. Okay, I mean it might just consolidate inside this channel itself. Okay, तो कल की जो ट्रेडिंग है, पहला व्यू जो है ट्रेडिंग का, मेरा जो व्यू है, बैंक निफ्टी आइडियली शुड गो अनदर 350 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेवल, which is around, yeah, this 32,860 के आसपास, which is in between R1 and R2 के बीच में अगर मैं एक लेवल बनाऊं, because my view is market might fall tomorrow by touching this level somewhere in between R1 and R2. That's the view. So अगर ये हम लेंगे, ये 32,890 के आसपास आ रहा है, और हमारी मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से टारगेट जो बन रही है थर्सडे के लिए, कल के लिए, ओके, वो बन रही है 32,800। और ये आप लोगों को याद है, मैंने जब वीकली व्यू वीडियो बनाया था, राइट, ऑन 10th ऑफ जनवरी, मैंने बोला था कि अगर ये 32,050, सॉरी 32,050, which is this level around, या अराउंड दिस लेवल जहां भी ये कंसोलिडेट किया है, मैंने बोला था अगर ये इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाता, ओके, 2 आवरली कैंडल्स, ओके, तो मार्केट विल, फर्स्ट टारगेट वुड बी 32,800, ओके, और ये टारगेट हमारा शायद कल आए 32,800 का, ये टारगेट एक बार आना चाहिए विद दिस काइंड ऑफ मूव। हाँ, उसके बाद मार्केट गिर जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी का जो व्यू है, पहले तो 32,800 का टारगेट आना चाहिए। दैट इज व्हाट आई सेड इन द ग्रुप राइट नाउ, दैट if bank nifty opens gap up tomorrow, then we will see a sell on top, and the top for tomorrow would be around 32,850 to 32,900 का लेवल। ओके, एसबीआई आज जैसे परफॉर्म किया है, ओके, उसके हिसाब से उसका तो बीटीएसटी बनता है, तो इट विल गैप अप। बाकी स्टॉक्स भी हम देखेंगे। तो बैंक निफ्टी वी माइट सी गैप अप अनलेस देयर आर ग्लोबल markets where basically, especially in the US market, the same share trading at a negative valuation. Okay, otherwise we should see bank nifty as a gap up. So अगर ये 200 पॉइंट्स भी गैप अप कर देता है, 574 में है, 774, दैट मीन्स ये R1 के ऊपर ही गैप अप कर रहा है, राइट, या फिर माइल्ड गैप अप करता है डे हाई के ऊपर, 700 के ऊपर गैप अप करता है, 150 पॉइंट्स गैप अप करता है। तो माय व्यू वुड बी मार्केट फर्स्ट शुड गो अप, market first should go up, okay, and this up basically should be very slow going up, okay, it should not go up like firing mode like this, okay, and then struggle around 32,850 900 level for half an hour kind of stuff, then we can actually do a sale on second price action. Okay, कल अगर आप सेल रहे हो, एक्सपायरी में खेल रहे हो, तो make sure that you do it on the second one. So that means market going here, struggling here, okay, and it is forming a bearish trend on a 30 minutes kind of time period, then you can make a sell. And then if your trend line is broken, especially this level, ye jo swing high hai, if this is broken, which is 32,620, if it is broken, we would see bank nifty first target at least here 32,400,
एंड बेस्ट केस 32,300. उसके बाद रेस्ट इज बोनस. 32,300 still would act like a support tomorrow. Very, very high chances that it will act like a support tomorrow. So if you're selling and you're waiting for long, do not expect market to go below 32,300. अगर जाएगा तो वो तो बोनस होगा and ये पैनिक सेलिंग आ जाएगी. But this is the kind of behavior I'm expecting for market tomorrow. My preferable scenario. जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा हो तो इट कुड बी ए वेरी गुड वन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्निकल्स को भी फॉलो करेगा, टारगेट भी देगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, ऑप्शन चेन डेटा, ये नीचे भी आएगा आइडियली. सो योर पुट might get actually an jackpot trade tomorrow if it is coming from here. Okay, when you are when you are not going to sell, that means if it is not forming the bearish trend in 30 minutes of time duration, do not sell. Okay, वो बनाएगा तभी सेल करना. अदरवाइज R1 के नीचे आया, नीचे से ऐसे फास्ट आ गया जैसे, तो R1 के नीचे आने पे ही सेल करना, विच इज एक्चुअली 32,790 के आसपास. ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो वहां पे भी आप सेल कर सकते हो. बट माय व्यू वुड बी इफ बैंक निफ्टी इज गैपिंग अप एंड गोइंग अप इन द मॉर्निंग, आई वुड प्रीफर टू सेल बैंक निफ्टी टुमारो. ओके, अनलेस मेरा ब्लू कैंडल यहाँ पे बन जाए. हमारा ब्लू कैंडल सबको पता है कैसे बनता है. अगर ब्लू कैंडल यहाँ पे बन जाता है, then we will wait for 33,000 psychological level to wait and make a sell from there. Okay, यहाँ पे आपको ट्रेंड देखनी है शॉर्ट टर्म. That is the only scenario that you need to remember. If Bank Nifty opens flat, okay, still my view is market should go up. Okay, and it should follow the same scenario which we talked. So the tomorrow's flat and positive scenario is ideally same. If market gaps down, okay, if market gaps down, then we need to check price action. It would be very difficult to tell के market कल panic selling देगा. अगर देगा तो भी ये फर्स्ट सेशन में ही देगा आइडियली. फर्स्ट सेशन मतलब our target would be 32,100. 32,100 also is going to act as a very, very strong support. Okay, अगर ये gap down होता है तो, otherwise 32,300 is my very, very strong support. Okay, gap down अगर होके नीचे आता है, I would actually prefer to buy at 32,100. जैसे यहाँ पे आज ये बाय दिया था ना, सेम लेवल पे I would prefer to buy गैप डाउन सिनेरियो में. बट ये सिनेरियो मेरे को थोड़ा कमजोर लग रहा है. मेरे को जो सिनेरियो लग रहा है अपर साइड से नीचे आने का सिनेरियो लग रहा है. और ये जो टारगेट मैंने दिया है, इंटरिम टारगेट, ये टारगेट आ जाना चाहिए if technicals are going to work. So that is how we are trying to trade in Bank Nifty tomorrow. Okay, and निफ्टी अगर हम देखें, देखो निफ्टी में मैंने क्या बोला था आपको, अगर तो वीकली व्यू आपको याद है, मैंने बोला था 460 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो दिस इज द टारगेट अल्टीमेटली वी शुड लुक एट, व्हिच इज 14,864. ओके, बट बाय लुकिंग एट टुडेज मूवमेंट, दिस लुक्स लाइक ए डंपिंग काइंड ऑफ मूवमेंट हियर, बोथ इन रिलायंस एंड एचडीएफसी तो मैं वीक था. रिलायंस आई वाज पॉजिटिव, बट रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है. कल ही पॉजिटिव हुआ था, आज फिर नेगेटिव हो गया. तो रिलायंस का भी रिजल्ट आएगा तो उसके बेसिस पे देखते हैं. अगर कल ये पॉजिटिव मूवमेंट देता है तो बहुत बढ़िया बात है, तो निफ्टी को ऊपर रखने की पॉसिबिलिटीज है. निफ्टी कल इज एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर, और निफ्टी का भी व्यू सेम है. दैट मीन्स निफ्टी जितना ऊपर जाएगा, हमारी सेल की जो एक व्यू है वो स्ट्रांग बन जाएगी, और निफ्टी की सेल मिनिमम यहाँ तक आनी चाहिए 14,560. ओके, ये कितना स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कितना पॉइंट जाना चाहिए वो देख लेते हैं. 150 पॉइंट्स, और 150 पॉइंट्स में अगर यहाँ से लूं, सो दिस इज आल्सो ब्यूटी, इट इज कमिंग अराउंड 14,720. तो एक लेवल हम यहाँ पे भी रख लेते हैं, व्हिच इज दिस इज एग्जैक्ट द सेम व्यू आई हैड विथ बैंक निफ्टी आल्सो, राइट, दैट मार्केट विल फॉल फ्रॉम बिटवीन द लेवल्स ऑफ R1 एंड R2. ओके, तो निफ्टी अगर कल गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, आई वुड एक्सपेक्ट मार्केट टू गो अप इन द मॉर्निंग. ओके, एंड इफ टचेस 720 724 के आसपास अगर टच कर देता है, वी हैव ए वेरी वेरी हाई प्रोबेबल सेल फ्रॉम हियर कमिंग डाउन साइड. ओके, एंड इट विल बी ए वेरी गुड सेल. 724 to 560 मतलब आज की क्लोजिंग जहाँ पे है, वी आर टॉकिंग अबाउट 150 पॉइंट सेल इन निफ्टी टुमारो इटसेल्फ. ओके,
and we might tomorrow we might see both the move directional, that means positive side as well as negative side. Okay, so I'm not expecting the market to go like on the positive side like this. It might go in one scenario if it crosses R2, both in Nifty and Bank Nifty. यानी ये इसलिए ये लेवल बीच में दिया है, अगर ब्लू कैंडल इसको क्रॉस करता है तो हम सेल नहीं करेंगे, then it might just go into a unidirectional kind of stuff. Okay, that means R3 tomorrow is here, which is around our ultimate target. But this is very, very high level. We are talking about 300 points move in a day, which is not possible. So my probability is that Nifty should come down from 724 itself. And I somehow think कि निफ्टी का ये जो 864 का जो लेवल है और ये आज का जो कैंडल बना है उसके हिसाब से ये जनरल इस तरह की बिहेवियर आपके मार्केट में बुल रन में तभी बनती है जब एग्जॉशन आता है. दैट मीन्स ये कैंडल के बाद निफ्टी मैक्सिमम कैन गो अप टू 100 पॉइंट्स एंड इट हैज टू फॉल आफ्टर दैट एनीवे. तो अगर आज की डे की हाई ले लो, कितना है 652 से 100 पॉइंट आई एम आस्किंग विच इज 752 इसके आसपास. और टारगेट इज 850 के आसपास एनीवे 860. तो ये 100 पॉइंट से टारगेट बिना जाए पहले भी फॉल करने की पॉसिबिलिटीज है. The ultimate target we would be looking at 752 max to max. उसके बाद निफ्टी को एक अच्छा करेक्शन देना चाहिए, बट हम देखेंगे वो देता है कि नहीं देता है. आफ्टर टुमारोज मूव वी विल लुक एट, बट टुमारो यू ड्रॉ ए लेवल हियर 722. If it touches and it shows weakness here, go for a sell. You might get a minimum 100 point sell, maximum 150 point sell. Okay, this is the sell that you need to take. अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है बाई चांस, गैप डाउन अगर हो जाता है दिस लेवल, चेकिंग दिस लेवल जहां से आज ऊपर गया था, we would actually try to buy from this level here if Nifty is sustaining even after 10 PM above this level. टाइमिंग याद रखना, 10 AM के नीचे या तो ये नीचे आ जाएगा तो it can come up to this, but this is a rare scenario, but I'm talking about scenarios. नीचे आ गया तो आप सेल ले सकते हो, सेल आप यहाँ तक ले सकते हैं जो गैप छोड़ के गया है 366 तक, बट ये सिनेरियो नहीं होगा. बट बाई चांस अगर ये 455 के ऊपर ये इवन आफ्टर 10 PM इट इज सस्टेनिंग, ओके, इवन आफ्टर 10 PM, तो वी विल प्रोबेबली गो ऑन ए बाय हियर अराउंड 1015. ऐसे कंसोलिडेशन करने के बाद गो फॉर ए बाय अराउंड 1015 1030 एंड टेक इट लॉन्ग अप टू निफ्टीज प्रीवियस डेज हाई. ओके, टुमारो अगर यहाँ से बाइंग दिया ना, देन यू विल गेट ए बाइंग जैकपॉट टुमारो. अगर गैप डाउन सिनेरियो में आया तो यू विल गेट ए बाइंग जैकपॉट टुमारो. ओके, बट ये सिनेरियो में थोड़े कमजोर लग रहा है. हम लाइव में देखेंगे कि ऊपर साइड से आ रहा है या नीचे साइड से आ रहा है, उसके हिसाब से हम जैकपॉट लेंगे. यू हैव जैकपॉट्स ऑन बोथ द साइड्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर मार्केट इज ओपनिंग एंड फर्स्ट सेशन में मार्केट इज गोइंग अप और कमिंग डाउन. ओके, बेस्ड ऑन दैट वी विल टेक आवर ट्रेड. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड इन निफ्टी स्टॉक्स. एक बार देख लेते हैं एचडीएफसी. देखो एचडीएफसी मार्केट जब यहाँ था ना, मैंने बोला था एचडीएफसी को मैं वीक देख रहा हूँ. मार्केट ये यहाँ पे कंफ्यूज किया. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कैंडल्स. आई वाज एक्सपेक्टिंग एचडीएफसी टू कम डाउन फ्रॉम हियर इटसेल्फ, बट कोई नहीं, आज जिसने ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स की गिरावट दी है, दिस वाज ड्यू. सो टुमारो एचडीएफसी कैसे ट्रेड करेगा, इसके नीचे अगर एचडीएफसी ट्रेड करना चालू किया ना, तो इट माइट जस्ट कंसोलिडेट. Okay, that is the scenario would be for Nifty's gap down scenario, and then it will try to recover from this level, which might bring Nifty up, जो मैं second session की बात कर रहा हूँ. Okay, अगर ये गैप अप किया कल HDFC, अगर गैप अप किया तो कल सेल ऑन राइज बनेगा, जो हमारा सेल ऑन राइज फ्रॉम टॉप इन गैप अप सिनेरियो है. रिलायंस को थोड़ा देख के ट्रेड करना. ओके, रिलायंस आई कैन नॉट गिव यू अ परफेक्ट ट्रेड व्यू फॉर टुमारो, तो इसका रिजल्ट के बाद ही देखेंगे. इंडसइंड बैंक आज पॉजिटिव था, कल ये कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव, और मैंने स्टॉक्स ऑलरेडी देख लेते वीडियो बनाने से पहले. इफ इंडसइंड इज बैंक इज गैपिंग अप टुमारो, नो, दिस विल आल्सो फॉल डाउन, कंट्रीब्यूट इन द फॉल. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेम सिनेरियो है. इतना बड़ा मूवमेंट गैप अप जरूर करेगा. पहला 15 आधा घंटा 1 आवर, इफ इट सस्टेन देन वी विल सेल एसबीआई आल्सो. Same with everybody. Axis Bank also same view. देखो Axis Bank, SBI, ICICI, you will find similar structures. Okay, so all these scenarios gap up में हम थोड़ा रुक के सेल करेंगे.
कोटक बैंक ये मैंने कल दिया था, परसों दिया था आपको। मैंने क्या बोला था वीडियो में, 1922 के नीचे अगर ये गया तो कोटक बैंक को बाय मत करना। हमने तो पोजिशनल सेल यहाँ पे कट कर दिया था, वी लॉस्ट अराउंड 50 पॉइंट्स बट विच इज ओके। बट 1922 से हमने सेल लिया था, अराउंड 10-15 पॉइंट्स हमने लिया था कल। बट मैंने ये क्लियर बोला था वीडियो डे बिफोर यस्टरडे दैट इफ इट गोज बिलो 1922 इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर कोटक बैंक टू कम बैक। तो कल मेरे को ग्रुप में भी किसी ने पूछा था कि सर कोटक बैंक बाय करेगा, मैंने बोला कोटक बैंक बाय मत करो। और कल आप सारे स्टॉक्स देख लेना, सभी स्टॉक्स ने रिकवरी की सेकेंड हाफ में, कोटक बैंक ने रिकवरी नहीं किया because the technicals were telling that. Okay, so कोटक बैंक अभी वीक है थोड़ा। एक छोटा रिकवरी मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था, जो आपको दिखेगा अगर आप चार्ट में जाओगे, you will see it was trying to recover but again sellers are selling it down. See, these are recover, this kind of candles you can see, these are recovery candles. It was trying to recover but the sellers were so heavy it was not able to recover at all. Okay, but it was trying to recover. So कोटक बैंक कल अगर रिकवर किया, ओके, I'm not saying कि कल रिकवर करेगा, गारंटी नहीं है। कल अगर रिकवर किया तो इसकी रिकवरी भी बहुत कम होगी, तो दैट मीन्स ब्लाइंड बाय मत कर लेना। इसकी रिकवरी 1900 तक की है, 20 पॉइंट्स की ही रिकवरी है, उसके बाद ये फिर से गिर जाएगा ये। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, कोटक बैंक गिरे, अगर गिर रहा है तो गिरे, कोई बात नहीं है, ये पहले गैप अप हो जाए और फिर गिरे, सो दैट इट इज अलाइन टू आवर बैंक निफ्टी व्यू। एचडीएफसी बैंक हम लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं, ये ब्रेकआउट देके गया है, तो most possibilities it might just test the breakout. Okay, it might just test the breakout once again and then go up. That might be a possibility. So HDFC बैंक में क्या मैं बेसिकली कल के लिए वीक मानता हूँ HDFC बैंक को। HDFC बैंक को वीक तो नहीं मानता, बट HDFC बैंक कैन डू समथिंग लाइक दिस। मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है इसको। 12 पॉइंट का गैप अप अगर किया HDFC बैंक ने, 12 point is coming here, this level, beautiful. Okay, so this swing high, right, and this swing low around, so it might just 1485 अगर गया तो हम लोग कल भी इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड देख सकते हैं, इंटरिम नेगेटिव ट्रेंड। ओके, इंटरिम नेगेटिव ट्रेंड टू टेस्ट दिस लेवल अगेन, जहां से ये जा रहा है, जो टारगेट मैंने दिया है। तो दैट इज द व्यू फॉर HDFC बैंक। बाकी जो है आप मेरे को ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आज के लिए इतना ही। जय माता दी, गुड नाइट। बाकी कल लाइव में देख